বিশেষ সফরে রাজ্যে আসলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নোরগের মূর্তিতে মাল্যদান করে, নৌকা ঘাটে পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে জনসভায় যোগদান করেন তিনি। সেখানে তীব্র কটাক্ষ করেন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে। শিলিগুড়িতে পৌঁছে আজ জনসভা করেন অমিত শাহ। আগে যখন বাংলায় এসেছিলাম তখন বিজেপির 3 জন বিধায়ক ছিল। 2,28,00,000 মানুষের ভোটে আমরা বিধায়ক সংখ্যা এখন 77। মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে, বললেন অমিত শাহ। তিনি আরো বলেন, শিলিগুড়ি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, মানুষের রায় মমতা দিদি তৃতীয়বারের সরকারে এসেছিল, ভেবেছিলেন তিনি মমতা এবার শুধরে যাবেন, কিন্তু কোনো বদল হয়নি। বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে, মানবাধিকার কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তাতে, এমনটাই বলেন অমিত শাহ। এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সিএএ শুরু হবে। মতুয়াদের মন জয়ে সিএএ নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শিলিগুড়ি জনসভা থেকে তিনি বলেন, মমতা দিদি সিএএ নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। আমি এখন থেকে বলে যাচ্ছি, করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সিএএ চালু হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, মমতার শাসনকালে বাংলা আর্থিকভাবে কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া টাকার প্রকল্পে নিজের ছবি ছাপান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শিলিগুড়ি থেকে কড়া ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, তৃণমূল 1 বছর সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু সন্ত্রাসের রাস্তা থেকে তৃণমূল সরে আসেনি। বাংলা থেকে তৃণমূলের অত্যাচারী শাসনের শিকড় তুলে ফেলতে হবে। বিজেপিকে বাংলায় লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। গোর্খাদের সমস্যা নিয়ে তিনি বলেন, শিলিগুড়ির সভা থেকে গোর্খাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন অমিত শাহ। তার মতে একমাত্র বিজেপি গোর্খাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। মমতাকে পরামর্শ দেওয়া ঢঙে তিনি বলেন, জিটিএ নির্বাচন করে গোর্খাদের দাবি পূরণ করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 2 দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন অমিত শাহ। আজ রয়েছেন শিলিগুড়িতে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রয়েছেন আজ তিনি। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে প্রথমে তিনি যান তেনজিং নোরগের মূর্তিতে মাল্যদান করেন দার্জিলিং মোড়ে। তারপর সেখান থেকে নৌকা ঘাটের দিকে এগিয়ে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তারপর সেখান থেকে শিলিগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে গিয়ে জনসভায় তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে এবং সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। সভা থেকে তিনি বলেন, राजू यहाँ बैठा है, राजू जोर से ताली बजाना। दार्जिलिंग को इसमें कवर कर दार्जिलिंग के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है। मित्रों, गोरखा भाइयों बहनों को भी दिल्ली हमेशा गुमराह। मैं आज मेरे गोरखा भाइयों बहनों को कहने आया हूं, अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत सारी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ लिया जाएगा। दीदी, जीटीए चुनाव से गोरखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, आप समझ कर रखिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज समग्र इस बड़ी रैली के माध्यम से इसके बाहर भी हजारों लोग रोड पर खड़े इस बड़ी रैली के माध्यम से कहने आया हूं, ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। भाइयों बहनों, 1 साल का मौका दिया था उनको, 1 साल का, सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरे, 7वें आसमान पर रहते हैं। मैं उनको कहने आया हूं, अच्छों का मिजाज जनता बदल देती है भाई, ये लोकतंत्र है। बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? आप जोर से बोलो, बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्तापित हो, इसके लिए सब कुछ करेगी। इसका वादा लेकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मजबूती से लड़ने के संकल्प के साथ
मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। 2,88,00,000, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 2,28,00,000 वोट देकर आपने गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता की ऋणी है। मित्रों, आप सबने, बंगाल की जनता ने एक मैंडेट दिया कि तीसरी बार ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाइए। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, ये मैंडेट को हमने माना। हम सोचते थे मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी जब 3 बार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाई, तब अब तीसरी बार सुधरेगी, वो सुधर जाएगी, ऐसा हम मानकर चलते थे। 1 साल तक राह दिखा। बंगाल के लोगों, बताइए, आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। मैं आज यहां उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज समाप्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ अपनी लड़ाई चालू रखेगी और उसको परिणाम तक हम पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हो कि बंगाल के गरीबों का अधिकार आप लूटोगे और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? संभव ही नहीं। हम तो मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का स्वप्न लेकर बंगाल के अंदर निकले। मित्रों, अभी अभी चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, वो हिंसा के बाद मानव अधिकार आयोग ने कहा कि यहां पर कानून का राज नहीं है, यहां पर जो सत्ता में है उनकी इच्छा का राज चल रहा है। 101 लोगों की हत्या कर दी, 1829 लोग घायल हुए और 161 से ज्यादा मुकदमों में टीएमसी के गुंडे अपराधी पाए गए। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहकर जाता हूं, डरिएगा मत। ममता दीदी के अत्याचार तो बहुत कम है। हम केरल से लेके पूरे देश में 1950 से राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करते हुए आए हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में भी बीजेपी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, 22 मार्च से लेकर अब तक 181 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ये उत्तर बंग वालों की आवाज को क्या हो गया है? कलकत्ते में ममता दीदी तक हमारी गूंज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए,
की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुकांत मजमूदार जी, बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष जी, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जी, जॉन बाला जी, मंच पर उपस्थित सारे सांसद और विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और आज उत्तर बंग की ये विराट जनसभा में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज बहुत समय के बाद, 1 साल के बाद मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं। क्यों 1 साल के बाद आया, बाद में बताता हूं मैं, मगर जब यहां पर आया हूं तब रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुवर टागोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुदीराम बोस, बंकिम बाबू, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंद, ये सभी की ये पवित्र बंगाल की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं तब ठाकुर पंचानन वर्मा, स्वर्गीय जगत दीपेंद्र नारायण जी, उनको भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर बंग की ये भूमि आनंदमय भट्टाचार्य, देवेश रॉय, श्रीमती मंटू घोष, लुई बैंक्स, भगत बहादुर बुढ़ापीठी और श्रीमान गंभीर नेपाली की भूमि है। ये भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब सबसे पहले उत्तर बंग और पूरे बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि गत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जब हम मैदान में उतरे तब हमारे पास 3 सीटें थी, सिर्फ 3 सीटें। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 से बढ़ाकर 77 सीटों का विजय दिलाया। इसके लिए बंगाल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies?
Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement.